کے ازدواج اور آپ کے اہل بیت اطہار کے خادم کے فرائض آپ نے انجام دیے، تو یہ قبلہ صوفی صاحب کی نسبت اور ان کی محبت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے قبلہ والد صاحب کو بھی وہی مقام عطا کروایا، اسی مقام پر رسائی عطا فرمائی جو قبلہ صوفی صاحب کا مقام تھا۔ قبلہ صوفی صاحب کے مریدین پوری دنیا میں پھیلے، کچھ ساؤتھ افریقہ میں، کچھ امریکہ میں، کچھ انگلینڈ میں، کچھ دبئی میں، اور ہر مرید جو ہے وہ اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے اور پیر کو اس مقام پر لے جاتا ہے کہ جہاں کا وہ اس کا مقام ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ اس حد تک مقام بیان کرتا ہے کہ وہ بہت اونچی شان بیان کر دیتا ہے۔ ابھی تک میں نے جو کچھ بیان کیا حتی الامکان اس میں یہی کوشش کی کہ کوئی مبالغہ رائے نہ ہو، وہی سب کچھ بیان کروں کہ جو میں نے اپنے والد صاحب کی زبانی سنا یا جو قبلہ صوفی صاحب کی زبانی سنا، اور وہ سب کچھ ویسے ہی بیان کیا کہ جو قبلہ صوفی صاحب نے خود بیان کیا یا والد صاحب نے خود بیان کیا۔ اب میں اسلم بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام سے ہمارے دل کو نور فرمائے۔ جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے گل کرتے نہیں اور شو پا دے۔ الحمدللہ یہ معمول تھا بڑے میاں صاحب کا، میاں مراد علی بودل صاحب کا، کہ جب بھی گیارہویں شریف ہوتی، صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، غلام حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب اکٹھے گیارہویں شریف میں جایا کرتے۔ اب جیپ تھی، اب بھی جیپ ہے، اس وقت کی جیپ تھی، تو جیپ میں جب قافلہ ادھر سے شروع ٹریول شروع ہو جاتا تھا تو یہ سیاسی لوگ سیاسی باتیں شروع کر دیتے تھے۔ میاں صاحب پیپل پارٹی میں تھے، دوسرے کچھ اور پارٹیوں میں تھے، یہ گفتگو گاڑی میں بیٹھے کہا جا رہا ہے، آپ یقین کریں گل کرتے نہیں اور شو پاتے۔ جب ہم نے ادھر جانا، حضرت صاحب کی محفل میں بیٹھنا، جناب میں انہی باتوں کا تذکرہ کرنا، یقین کریں آپ، یہ میں اپنی کانوں سے میں نے سنا ہے، کیونکہ ہم اکثر میاں صاحب کو جایا کرتے تھے غیر فلمی، تو جو باتیں یہ راستے میں ہم کیا کرتے تھے جناب نے وہی باتیں دہرانی ہو، تو یہ نظر کمال ہے۔ جہاں مرضی بیٹھے ہو سنتے تو ہے نا ساری باتیں، تو تجھے پاک پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ وعلی حبیب اللہ۔ راشد بھائی نے پنجابی نعت کا فرائض کیا۔ چنگے یا چنگے جب سے حضرت صاحب کا مریض ہو، جناب نے نیشنل بینک میں افسر بھرتی کروا دی ہے، تو یہ ان کی مہربانی ہے۔ اس سے پہلے ہم ایسے بس ریلو کرتے تھے، لیکن یہ نسبت کا کمال ہے، جناب کی مہربانی ہے کہ ان کے کرم نے کام سے کام چالو۔
مشکلات آسان ہو سارے مل کے پڑھ لو مشکلات آسان ہو ساریاں مشکلات آسان ہو چنگیا 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 یاریاں مشکلات آسان ہو ساریاں مشکلات آسان ہو ساریاں مشکلات آسان ہو ساریاں چنگیا بچ صفتاں نظر تو آندیاں چنگیا بچ صفتاں نظر تو آندیاں عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں آسان ہو ساریاں مشکلات آسان ہو ساریاں چنگیا بچ صفتاں نظر تو آندیاں عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں چنگیا لال لالو یاریاں چنگیا چنگیا لال لالو یاریاں غربت تو دیر کیا طاقت رب دی سو آقا دیا سرداریاں رب دی سو آقا دیا سرداریاں رب دی سو آقا دیا سرداریاں مشکلات آسان ہو ساریاں گھر محبت اللہ دے دلدار نال پھر رب کرے گا تیریاں دلداریاں رب کرے گا
दिया गुल सारियां शिकला आसान सार हो संसारियां चंगिया चंगिया लाल लालो यारियां चंगिया लाल लालो ये मजबूत है एक तो शेर ये लिखी भी मियाँ मुराद अली गोदरा साहब नक्शबंदी ये उनकी लिखी हुई है हाँ मेरे शेख है कुछ ऐसी करामत वाले हाँ मेरे शेख है हाँ मेरे शेख है कुछ ऐसी करामत वाले सर झुकाते हैं यहाँ के हुकूमत वाले सर झुकाते हैं यहाँ के हुकूमत वाले हाँ मेरे शेख हैं देखना है तो इन्हें देख अमरूदा देखना है तो इन्हें देख अमरूदा तुझको मिल जाएंगे दुनिया में ही जन्नत वाले तुझको मिल जाएंगे दुनिया में ही जन्नत वाले हाँ मेरे शेख हैं और सबकी तकदीर में होता नहीं इनका दाम इनके दामन को छुआ करते हैं किस्मत वाले इनके दामन को छुआ करते हैं किस्मत वाले सर झुकाते हैं यहाँ आके हुकूमत वाले हाँ मेरे शेख हैं जनाब क़िबला आलम महबूब इलाही महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफी मोहम्मद सदीक नक्शबंदी मिज़रदी कंधारी रहमतुल्लाह अलैह हम जनाब का उर्स मुबारक मना रहे हैं और इसके अंदर हम जनाब का ही तज़किरा जनाब की बातें और उन्हीं के ही
प्रवक्ता और उन्हीं के तरबियत याफ्ता, उन्हीं के ही सलूक पे चलने वालों का तज़किरा भी साथ साथ करते जा रहे हैं। जनाब के बहुत से लोगों को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पाक बारगाह तक पहुँचाया, उस कचहरी तक पहुँचाया कि जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर मुनक्कद होती है, कि जहाँ पे बुजुर्गान दीन, औलिया इकराम, असहाबा इकराम हाजिर होते हैं और अपने अपने इलाके के मसाइल और लोगों के मसाइल और दूसरी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जनाब किबला सूफी साहब की क्या बात करूं, जनाब एक ऐसी हस्ती थी कि जब जनाब का विसाल हो गया तो ऐसे लगता था कि जैसे सारा हर तरफ अंधेरा छा गया। 2002 में जनाब का विसाल हुआ। विसाल से कुछ अर्सा पहले, 8 या 9 माह पहले, जनाब किबला आलम सूफी साहब के साहबजादे हज़रत मियां मोहम्मद मरूफ नक्शबंदी मुजद्दिद कनारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेटा सरमद, आप आना, हम कश्मीर के मुजाहिदीन जो जाते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, जहाज की ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। बंदा नजीब ने जनाब अब्बाजान से इजाज़त ली और जनाब मियां मरूफ साहब की खिदमत में हाजिर हो गया। मियां साहब ने फरमाया कि अभी हमने जनाब से इजाज़त नहीं ली, जनाब आते हैं तो जनाब से इजाज़त लेंगे तो फिर हम इंशाअल्लाह कल जो है वो ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। बाबा वाला मदरसा में जनाब मियां साहब का सब क़याम था और जनाब के पास में मियां मरूफ साहब के पास बाबा वाला में रुक गया। जनाब सूफी साहब उस वक्त नूरुल्लाह शरीफ में रहते थे और जनाब मियां मरूफ साहब बाबा वाला में रहते थे। अगले दिन जनाब किबला सूफी साहब तशरीफ लाए। 10-11 बजे के बाद जनाब तशरीफ लाते, जनाब सूफी साहब तशरीफ लाते और कुछ देर क़याम करते और फिर नूरुल्लाह शरीफ चले जाते। जनाब तशरीफ लाए, जनाब की दस्तबूसी की। जनाब ने पूछा कि समद बेटा कैसे आए हो? तो मैंने कहा हज़ूर जनाब मियां मरूफ साहब ने बुलाया है तो इसलिए हाजिर हूँ। जनाब अंदर घर में चले गए। कुछ देर के बाद जनाब बाहर निकले और नूरुल्लाह शरीफ चले गए। जनाब मियां साहब बाहर तशरीफ लाए कुछ देर के बाद और कहा कि अभी हमने किबला सूफी साहब से इजाज़त नहीं ली, हम इंशाल्लाह इजाज़त ले लेंगे तो फिर हम ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। मैं फिर मामा बाला में रुक गया। 2-3 दिन ऐसे ही होता रहा। अब फारिग बंदा, करने को कुछ काम नहीं, कोई करने को कुछ भी नहीं था, फारिग वहाँ पे बैठा रहता, जो लोग आते उनसे बातें करता रहता, या जो तालिब इल्म कुरान पाक पढ़ रहे होते थे उनके पास बैठ कर पढ़ता रहता। 3 दिन के बाद दिल में ख्याल आया कि अल्लाह के बंदे फारिग में बैठे हो, कोई काम ही कर लो। ऊपर मस्जिद में बाबा वाला मस्जिद जिन दोस्तों ने देखी हुई है, ऊपर एक वसी हाल है और उस वक्त चूँकि जनाब किबला सूफी साहब अलीम थे, उनकी इतनी तवज्जो नहीं थी, तो मस्जिद के हाल के ऊपर जाले लगे हुए थे और वहाँ पर सफाई का इंतजाम होने वाला था। 3 दिन के बाद कोशिश करके एक लंबी सी छड़ी बनाई, उसके साथ झाड़ू बांधा और मस्जिद की सफाई शुरू कर दी। 3-4 दिन जैसे ही जनाब ने आना, जनाब के आने से पहले मैंने कपड़े शपड़े पहन के जनाब से मिलने के लिए तैयार हो जाना। जनाब ने आना, मुलाकात करने, घर चले जाना और फिर जनाब ने वापस चले जाना। कुछ 3-4 दिन लगाकर बाबा वाला सारे मदरसा की अच्छी तरह जालों से सफाई की, दीवारों को साफ किया, झाड़ू दिया, उसको झाड़ पोंछ के सारी मस्जिद को जो है वो नियत कर दिया। जुम्मा के रोज जनाब तशरीफ लाए, जुम्मा पढ़ा तो जनाब के पीछे बैठा हुआ था। जनाब ने फरमाया समझ बेटा ऐसा करो कि आप हमारे पास नूरुल्लाह शरीफ आ जाओ। मेरी खुशकिस्मती जनाब किबला सूफी साहब ने अपनी खिदमत के लिए मुझे नूरुल्लाह शरीफ बुला लिया। जनाब के पास नूरुल्लाह शरीफ चला गया।
11ਵੀं पर अब्बा जी तशरीफ ले गए और जनाब किबला आलम ने फरमाया मुराद अली सरमद अली बड़ा चंगा है, ये साढ़े कोल ही रहेगा, इनू इत्थे ही रहन दे। और उसके बाद यकीन करें दिल तो पहले ही वहां से आने को नहीं था, लेकिन जब जनाब ने ये फरमा दिया बिल्कुल ही वहीं रहने को दिल करने लग पड़ा, वहां से आने को दिल ही नहीं करता। और ऐसे ही लगता कि जैसे मेरे वालिद भी वही हैं, मेरा घर भी वही है, मेरा सब कुछ भी वही है। और आज तक अभी तक अक्सर पीर भाई जिनको इन बातों का पता है वो मुझे यही कहते हैं कि सरमद अली तुमको वहां से छुट्टी नहीं मिली, और मैं भी उनको यही कहता हूँ कि जनाब मुझे वाकई छुट्टी नहीं मिली, मेरा भी मरूदा शरीफ के अलावा कहीं दिल नहीं लगता, लेकिन क्या करूँ कि मजबूरी है। वालदा का अगर मुझे हुक्म ना हो तो यकीन जाने में एक पल भी ना लगाऊं और मरूदा शरीफ चला जाऊं। अगर वालदा की खिदमत और उनकी इताअत ताबेदारी ना हो तो मैं कुछ भी देर ना लगाऊं और मरूदा शरीफ चले जाऊं। ये उनकी प्यार और उनकी नजर शफकत और नजर इनायत का नतीजा था। ये बंदा गुनाहगार को जनाब ने इस मुकाम पर पहुंचा दिया, इस जगह पर पहुंचा दिया, और उनकी नजर शफकत थी, उनकी नजर इनायत थी कि उन्होंने अपने उसी उजरा खास में इत्काफ की इजाजत दी कि जिसके अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और यकीन जाने कि जब किबला सूफी साहब उम्रे पर तशरीफ जा रहे थे और मैं सोच रहा था कि अगर जनाब उम्रे पे जा रहे हैं तो बंदा पीछे क्या करेगा, कि मुर्शिद उम्रे पे होगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे होगा, वह बंदे तुम्हारा पीछे क्या बनेगा, तुम्हारा गुजारा कैसे होगा। तो जनाब ने फरमाया कि सरमद अली तुम हमारे हुजरे में इत्काफ बैठ जाओ। 6-7 दिन जनाब अबू ज़हबी में रुके। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मदीना शरीफ आने की इज्जत नहीं हुआ, जनाब वापस तशरीफ ले आए। 27वां रोजा था जब मुझे पता लगा कि जनाब वापस मरूदा शरीफ आ गए। अब मुर्शिद बाहर बैठा हो और बंदा इत्काफ में हो, ये कैसे हो सकता है। सुबह जनाब पता लगा कि जनाब बाहर डेरे में तशरीफ ले रहे हैं। मैंने चादर ओढ़ी और जनाब के हजूर हाजिर हो गया। जनाब बैठे हुए थे, हाजी रियाज साहब जनाब के कदम पाँव दबा रहे थे, मैं भी एक तरफ बैठ के जनाब के पाँव दबाने लग पड़ा। जनाब मुराकबा में थे, जनाब ने मुराकबा से सर उठाया और कहा कि सरमद बेटा अपना इत्काफ पूरा करो, हम आएंगे तो तुम्हें उठा के कमरे से बाहर लाएंगे, हमारे आने से पहले बाहर मत आना, और बैठ के कुरान पाक पढ़ो और दुरूद शरीफ पढ़ो। जनाब की ताबेदारी में जनाब के हुक्म के मुताबिक 2 दिन के अंदर कुरान पाक का मुकम्मल तर्जुमा जनाब की नजर शफकत से उसको पढ़ने की सादत हासिल हुई। और ऐसे ऐसे राज आश्कार हुए, ऐसे ऐसे चीज, ऐसे ऐसे मसले हल हुए कि जो मैं नहीं समझता कि अगर जनाब के हुक्म के मुताबिक 2 दिन में मैं कुरान पाक पढ़ता ना पढ़ता तो वो सारे मसाइल हल हो जाते। और आप यकीन जाने कि वो जैसे आप मदीना मुनव्वरा में अक्सर दोस्तों को पता होगा कि बंदा को ख्वाहिश करता है तो फौरन उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, वो सोचता है तो फौरन वो काम हो जाता है, और पता नहीं कहां कहां से वो काम उसका बंदे का हो जाता है। तो बंदा क्योंकि बंदा ही होता है, ख्वाहिशात का गुलाम होता है, नफ्स का